चलें. Okay, today's lecture we are going to focus on viscosity. I have given you an introduction of fluid mechanics, and now I will focus more towards the properties of the fluids which lead to further questions in fluid mechanics. The first of these properties, or the major property, is viscosity. This is the book, the chapter 2 that we are going to follow from Applied Fluid Mechanics by Mort. And I expect you to read this topic, read this chapter before coming to the next class and come up with questions in case you have some questions or you did not understand anything. Objectives. At the end of this lecture, a student would be able to have a concept of dynamic viscosity. आपको मालूम होना चाहिए dynamic viscosity क्या है. You will also be able to understand the concept of shear stress and link with dynamic viscosity using the two-plate model. Understand Newton's law of viscosity. Know the difference between dynamic and kinematic viscosity, their relationship, and derivation of their units. Differentiate between Newtonian and non-Newtonian fluids. Be able to characterize different types of non-Newtonian fluids. Understand the relationship of viscosity with temperature for different types of fluid. Have an understanding of the VI. VI means viscosity index. Lastly, know some basic methods of measuring the viscosity. Acha, before I move on, have you ever heard the term viscosity before? Or have you calculated it maybe in your first semester or your inter or your metric chemistry mein, anywhere? जी, विस्कोसिटी कभी सुना था? यस सर, यस सर, विस्कोसिटी. यस सर. यूनिट क्या होते हैं सुना तो विस्कोसिटी है के? सर. यूनिट क्या होते हैं? कोई आइडिया नहीं. चले, जो जो चीज आप वैसे लिखा करें ना उसके यूनिट लाजमी लिखिएगा आंसर में, क्योंकि यूनिट के खुद के मार्क्स होते हैं. Okay, we'll come on to this. Just before I go on to dynamic viscosity, I would like to tell you that there are two types of viscosity. एक होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरी होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अब एज अ फ्लूइड मूव्स, जब आप एक फ्लूइड को मूव करते हो तो उस फ्लूइड के अंदर एक shear स्ट्रेस होती है. shear स्ट्रेस, व्हाट इज shear स्ट्रेस? shear स्ट्रेस इज अ फोर्स. अब क्वेश्चन जो माइंड में आता है ना, वो ये आता है कि चलें आपने बात की है स्ट्रेस की. दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, shear स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस. इन दोनों में फर्क क्या होता है? चलें, बिफोर आई गिव द आंसर टू दिस, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या लगता है क्या फर्क होता है? और अगर आपको shear स्ट्रेस नहीं मालूम है, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में मालूम है, तो उसके बारे में ही बता दें क्या होता है. दोनों में से एक भी बता दें जी. सर एक में प्रेशर अप्लाई करते फोर्स होंगे पर और यूनिट दूसरे में एरिया. force. देखें, पहली बात तो ये, दोनों में प्रेशर है क्योंकि स्ट्रेस है. स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स होता है, तो प्रेशर दोनों में लगेगा. एनी अदर आंसर? I'll give you a clue. Look at the names of the two. The names of one of them will tell you what it is. सर फोर्स. फोर्स तो दोनों है ना, मैं तो मान रहा हूं फोर्स दोनों है. सोचें. What do you understand by normal stress? मैथमेटिक्स में कभी नॉर्मल पढ़ा है? कहीं पर यूज हुआ है नॉर्मल? यस सर, परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर, यही फर्क है. नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन, फ्लूइड मोशन. और जो इसी के निस्बतन जो शेयर स्ट्रेस होगा ना, दैट इज द फोर्स पैरेलल टू फ्लो. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन shear stress and normal stress.
द मैग्नीट्यूड ऑफ shear stress यानी कितना shear stress लग रहा है, that depends upon the viscosity of the fluid. यानी अगर पानी जैसा है, पानी की विस्कोसिटी नहीं होती, उसका shear stress डिफरेंट होगा. ऑयल जो है, जो गाढ़ा होता है, उसकी कोई विस्कोसिटी होगी तो उसका shear stress डिफरेंट होगा. हर फ्लूइड का shear stress होगा, that is going to depend upon the viscosity of that fluid. Before we move on to shear stress, we need to define this viscosity. In simple words, viscosity of a fluid is the measure of its resistance to the deformation of the given rate. Deformation क्या है? Deformation is the force. When you deform something, you are applying a force. और इस deformation को जो resistance होती है या reverse direction में जो force होती है, उसको हम viscosity बोलते हैं. इसका सिंपल एग्जांपल ये ले लें कि विस्कोसिटी जैसे रेजिस्ट करती है, इसी तरह से फ्रिक्शन भी रेजिस्ट करती है. फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आल्सो, बट इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड वी डू नॉट यूज फ्रिक्शन, वी यूज द टर्म विस्कोसिटी बिकॉज़ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज व्हाट रेजिस्ट द फोर्स. अच्छा, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट यू डेफिनेटली विल हैव टू रीड बुक्स. डोंट बैंक ऑन द स्लाइड. स्लाइड के अंदर मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट लिखे हैं, बुक आपको सही डिटेल बताएगी. तो मैंने आपको रिलेटिवली इजी बुक दी है, रॉबर्ट मॉट इजी है, उसको फॉलो कीजिएगा. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ग्लैडली हेल्प यू. सो दैट इज व्हाट विस्कोसिटी इज. अब shear स्ट्रेस की बात करते हैं. shear स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टॉ. ये जो सिंबल है, ये टॉ को सिंबल करता है, ये ग्रीक वर्ड है टॉ. इट इज डिफाइंड एज द force required to slide one unit area of a substance over another. यानी वो फोर्स जो यूनिट एरिया, वन यूनिट एरिया को स्लाइड करती है ओवर एन अदर. इससे आपको दो चीजें तो मालूम पड़ गई. पहली चीज, स्लाइड ओवर एन अदर पैरेलल फ्लो होगा. और मैंने आपको शुरू में ही बोला था, shear स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में फर्क ही ये है कि shear स्ट्रेस जो होता है वो पैरेलल फ्लो होता है. एक चीज को आप दूसरी पे स्लाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका फोर्स जो होगा वो पैरेलल होगा उसके. दूसरी बात ये कि इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया, विच मींस दैट shear स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर. प्रेशर के यूनिट्स होते हैं फोर्स पर एरिया. सो इन द एसआई सिस्टम इसके यूनिट होंगे आपके पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इन द यूएस सिस्टम it is going to be PSI, because ज्यादातर यूएस सिस्टम के अंदर PSI यूज होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच अपॉन फुट स्क्वायर. पाउंड पर स्क्वायर इंच अपॉन फुट स्क्वायर, ये आपके shear स्ट्रेस के यूनिट होंगे, प्रेशर के यूनिट. अगेन आई एम रिपीटिंग, shear स्ट्रेस के मैंने ये यूनिट क्यों बोला? इट इज प्रेशर, इट इज नॉट फोर्स. डू नॉट make a mistake that saying shear stress is force. It is force per area. So in fluids such as water, oil and other common liquids, the magnitude of the shearing stress is directly proportional to the change in velocity between different points of the liquid. मेजर फ्लूइड्स के अंदर जैसे वाटर हो गया, कुछ कॉमन ऑयल हो गया, लाइट ऑयल, और दूसरे कॉमन लिक्विड्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस होता है ना, यानी ये जो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी होता है बिटवीन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द लिक्विड. यानी अगर उसकी पोजीशन एक है और जहां पर वो फ्लो कर रहा है दूसरी पोजीशन है, उस पोजीशन के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, बिकॉज ऑब्वियसली द वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ फ्लो, उसके बीच में जो चेंज है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर मैं बोलूं कि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं ये बोलूं कि शेयरिंग स्ट्रेस जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो बीच में क्या चीज होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब आप दिखाते हो या इनवर्स प्रोपोर्शन जब आप दिखाते हो, तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है ना, मैथमेटिकली यही करना होता है ना. तो वो जो कांस्टेंट है ना, वो विस्कोसिटी होती है. मैं आपको दिखाऊंगा इक्वेशन किस तरह बना है, कोई मसला नहीं है, बट आपको बोलने का मकसद ये है कि द रिलेशन इज बिटवीन स्ट्रेस एंड वेलोसिटी. स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी.
एंड दैट उसके अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। यहां तक बात समझ आई? यस सर। चलें, यहां तक बात समझ आ गई तो फिर ये देखिए, ये जो होता है ना, ये आपको प्रूफ कर रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस से किस तरह रिलेटेड है। दिस मॉडल, मैं आपको इस मॉडल के बारे में थोड़ा बता दूं। दिस मॉडल इज कॉल्ड द टू प्लेट मॉडल। टू प्लेट मॉडल यानी दिस इज वन प्लेट, ये जो ऊपर है ये वन प्लेट है, ये जो नीचे है ये दूसरी प्लेट है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड टू प्लेट मॉडल। इस मॉडल के बीच में आपके पास आपका फ्लूइड है। यू डू नॉट नो व्हाट द फ्लूइड इज, इट्स जस्ट अ फ्लूइड। ऑल यू नो इज दैट द टॉप प्लेट इज अ मूविंग सरफेस, यानी दिस गोज पैरेलल टू द फ्लो। फ्लो अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो ये जो सरफेस है, ये मैंने आपको बोला था ना, वन सरफेस ऑन टॉप ऑफ द अदर, ये सरफेस फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द राइट, और यहां पर आपको एक वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट द वेलोसिटी इज। ये जो चीज है नीचे वाला सरफेस, दिस इज अ स्टेशनरी सरफेस। सो व्हाट डू यू थिंक द वेलोसिटी वुड बी एट द स्टेशनरी सरफेस? जीरो। जब कोई सरफेस मूव ही नहीं कर रहा, जब कोई सरफेस मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी भी ऑब्वियस सी बात है जीरो होगी। यानी ये तो मैंने आपको जनरल आउटलाइन बता दी कि स्टेशनरी सरफेस वेलोसिटी जीरो, मूविंग सरफेस वेलोसिटी v। अब जो आपका फ्लूइड जो मूव करता है वो सिर्फ सीधी लाइन में नहीं मूव करता, द फ्लूइड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, और अगर ये पोजीशन चेंज करेगा तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल, प्लीज फॉलो माय माउस, दिस इज पोजीशन 1, this is position 1 of the fluid, this is position 2 of the fluid, this is position 3 of the fluid, this is position 4. So as you move with position, there are two things which are changing. Number one, the velocity is changing. Velocity at this point is not equal to velocity at this point. Velocity at this point is not equal to velocity at this point. Why is it not equal? There is a difference in velocity जो ये delta v आपको signify करेगी. Delta v, every velocity is going to be different. Similarly, the displacement is also going to be different. This point is at a different level than this point, then this point, then this point. That is the basic structure of the two plate diagram. अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, ये मेरा सेम मॉडल है। आम तौर पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है ना, इट्स अ कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाया जाता है, बट दिस इज अ प्रॉपर वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल रिलेटिंग टू विस्कोसिटी। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि सरफेस वही है, स्टेशनरी सरफेस नीचे वाला है, मूविंग सरफेस मेरा ऊपर वाला है। मूविंग सरफेस की कोई वेलोसिटी है, स्टेशनरी की वेलोसिटी नहीं है। ये जो कर्व बनता है इसको हम वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट होल डिस्टेंस इज y। दिस होल डिस्टेंस इज y। आप इसको y लिखें या x लिखें, बट वैसे y ही आता है क्योंकि इट्स डेवलप्ड दैट वे। तो दिस होल डिफरेंस इज y। अब इस y के अंदर मैंने क्या किया, अगर मेरा एलिमेंट स्मॉल है कंपेयर्ड टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल लेंथ के अंदर अगर इफ आई वांट टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट, आई कैन डू अ टेस्ट ऑन दैट। व्हाट डू आई मीन बाय स्मॉल एलिमेंट? बाय स्मॉल एलिमेंट आई मीन this point and this point. I am comparing any small element, or I could have done this point and this point, or I can have done this point and this point. क्योंकि मैं सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के जरिए विस्कोसिटी और वेलोसिटी और शेयर स्ट्रेस का रिलेशन दिखाना चाह रहा हूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। तो लेट अस अज्यूम कि जो दूसरा डायग्राम है ना, उसके अंदर आई एम कंपेयरिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। This point is a small element with compared to this length. Why do I say it's a small element? इस पूरे की लेंथ क्या है?
इस पूरे लेंथ की फ्रॉम द मूविंग सरफेस टू द स्टेशनरी सरफेस इट इज y, और इस एलिमेंट की क्या लेंथ हो जाएगी फिर, डेल्टा y, अ स्मॉल चेंज इन द लेंथ y। यही चीज मैंने यहां लिखी है, ये मेरा स्मॉल एलिमेंट है, यानी उस बड़ी लेंथ के ऊपर y जो है उसके ऊपर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये और ये दो लेयर ली हुई हैं। ऑब्वियसली इनकी एक स्मॉल हाइट है जो कि dy हो गई। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हर लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, यही मैंने आपको बताया था, सेम नहीं होती है। तो अगर मेरी वेलोसिटी इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर थी, इस पॉइंट के ऊपर मैंने अज्यूम कर ली कि मेरी वेलोसिटी वाज v, आई डोंट नो व्हाट दैट वेलोसिटी इज, वेलोसिटी 1 2 3, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ऑल आई नो इज कि इसके ऊपर मेरी एक वेलोसिटी थी v, और मैं यहां से लेकर यहां जा रहा हूं, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कोई डिफरेंट होगी। यहां से लेकर यहां तक तो वेलोसिटी v है, मगर उसके बाद ये थोड़ा सा आगे और जा रहा है, यानी देयर इज सम एडिशन इन दैट वेलोसिटी, दैट एडिशन इज नथिंग बट dv, अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी फ्रॉम हियर टू हियर इज v, एंड वेलोसिटी फ्रॉम हियर टू हियर तो v है, मगर ये जो चीज है ये dv है। ये डायग्राम समझ आया? यस सर। अच्छा, अब इस डायग्राम को लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे। ये दो डायग्राम थे, पहला तो सिंप्लीफाइड डायग्राम था, उस दूसरा मैंने उस सिंप्लीफाइड डायग्राम को एक्सपेंड कर दिया, मतलब वो जो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स बने थे, आई मेड वन सिंगल एलिमेंट फ्रॉम देयर। सो इन केस इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, बिकॉज मेरे पेपर्स में यूजली डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है, इफ आई आस्क यू टू शो द लिंक बिटवीन वेलोसिटी एंड shear स्ट्रेस या डिराइव वेलोसिटी एंड shear स्ट्रेस, तो आपको पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रिलेशन किस तरह आई है। ये आपसे मैं कंफर्म कर लूं, ये आपको बात कंफर्म है कि मिड हो या फाइनल हो, एक ना एक क्वेश्चन डेरिवेशन का लाजमी आता है। यूजली मेरे कभी कभी मैं दो दे देता हूं फाइनल में, मगर अगर मैंने आपको मिड में डेरिवेशन नहीं दी ना, फाइनल में लाजमी डेरिवेशन आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डेरिवेशन ना फाइनल में मिले ना मिड में मिले, क्योंकि मुझे ये लगता है कि डेरिवेशन इजी मार्क्स भी होते हैं, हो सकता है कि सम स्टूडेंट इज वीक इन कैलकुलेशन, सो एटलीस्ट दे गेट अ चांस इन डेरिवेशन। तो डेरिवेशन एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको डिराइव करना आ जाए, समझ आ जाए, तो आप एक आंसर को डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये ओपन क्वेश्चंस होते हैं, फ्री मार्क्स जो होते हैं, तो इसलिए प्लीज डू नॉट इग्नोर द डेरिवेशंस। Coming back to the theory, the figures shown on the previous slide show the concept of velocity change in a fluid. आपको मैंने velocity change का concept बताया है। अब वही बात हो रही है, a thin layer of fluid is shown between two surfaces in which one is known as the stationary fluid and one is the moving fluid. नीचे वाला आपका stationary fluid है, ऊपर वाला आपका moving fluid है। कहीं 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 इसको सरफेस बोला जाता है, कहीं पर इसको प्लेट बोला जाता है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर प्लेट बोला तो दैट इज द सेम एज सरफेस। फंडामेंटल कंडीशन क्या होती है? अ फंडामेंटल कंडीशन दैट इज प्रेजेंट when a real fluid is in contact with a boundary. अच्छा, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड का मतलब क्या है और आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है? जिस तरह एक टर्म होती है, आपने सुना होगा रियल गैस एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस तो आपने बहुत सुना होगा, रियल गैस आप सुनेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। रियल फ्लूइड एक नॉर्मल फ्लूइड होता है जिसके अंदर उसकी विस्कोसिटी होती है और shear स्ट्रेस होता है। आइडियल फ्लूइड को आप अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर कोई स्ट्रेस ही नहीं है, ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है। तो आपको आइडियल फ्लूइड के अंदर जाना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे तो हम जो अज्यूम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, एवरी फ्लूइड इज अ रियल फ्लूइड। So a fundamental condition is that is present when a real fluid is in contact with a boundary,
जब आपका रियल फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के साथ, तो उस फ्लूइड की सेम वेलोसिटी हो जाएगी बाउंड्री के साथ, यानी बाउंड्री वाली। अगर मेरी ये बाउंड्री है, ये फ्लूइड ट्रैवल कैसे कर रहा है? अगर ये फ्लूइड की ट्रैवल तो यहां से शुरू हो रही है, यहां से जाकर ये यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। इट्स ट्रैवलिंग लाइक दैट। तो ये जो फ्लूइड है, कहीं भी इस बाउंड्री के ऊपर इस फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो होगी, बिकॉज कंडीशन ये है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि जहां पर रियल फ्लूइड कांटेक्ट में आता है कोई भी बाउंड्री के साथ, उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है जो बाउंड्री की वेलोसिटी होती है। यानी फ्लूइड की वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जीरो होगी और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्स v होगी, इस जीरो होगी, इस पॉइंट पे v होगी। चले, बेस्ड ऑन दिस, इस assumption के ऊपर the velocity of the fluid at the stationary plate is 0 meter per second and the moving plate has some velocity v meter per second. देखें, मैं खुद भी यूनिट्स लिख रहा हूं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप भी लिखा करें। If the distance between the two surfaces is small, then the rate of change with position y is linear. हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस स्मॉल है दो सरफेसेस के बीच में, तो एक लिनियर रिलेशनशिप आती है। इसीलिए इन्होंने यहां पर एक लिनियर रिलेशनशिप निकाली है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, तो एक लिनियर रिलेशनशिप आती है। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? The velocity gradient is the measure of the velocity change, measure of the velocity change, and is given by dv upon dy. Velocity gradient जो होता है वो dv upon dy होता है। अब देखें dy, तो आप इसको मैं आपको बताता हूं dv upon dy velocity gradient कैसे आया। जब आप बात कर रहे हैं इसकी, ये आपका एलिमेंट ऑफ स्टडी है, dy तो आपका चलें यहां पर है। अब मेरा क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, अगर मेरे दो एलिमेंट हैं, मतलब एक एलिमेंट है उसमें दो फ्लो हैं, अगर एक v है दूसरा v प्लस dv है, क्योंकि उसमें कुछ चेंज आया है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एनीथिंग इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। If this is position 1 and this is position 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो अगर मैं चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे मालूम है मेरी फाइनल v प्लस dv है, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि सेकेंड एलिमेंट के ऊपर एक स्मॉल चेंज आ गया था। मेरी इनिशियल क्या है? v। तो मैं क्या कर रहा हूं? v प्लस dv माइनस v, यानी final condition minus initial condition, v cancels out, what is left? dv, that is my velocity gradient given by dv upon dy। clear हो गया? Yes sir. ये जो dv upon dy है ना, इसका दूसरा नाम shear rate है। do not confuse shear stress with shear rate। shear stress जो होता है that is a force, shear stress जो आपका है वो आपका force है। ये जो आपका है ये velocity gradient है, shear rate, shear stress, shear rate are two different things। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो shear rate की बात कर रहे हैं। तो यहां तक मैंने आपको दिखा दिया कि shear rate किस तरह हमने डिराइव की है। अब देखें, हम ये भी बोलते हैं shear stress is directly proportional to the shear rate। यही बात मैंने आपको यहां पर बोली थी। इन अदर वर्ड्स मैं आपको यही बोल रहा था। मैंने यहां पर कहां पर लिखा था? ये लिखा, shearing stress is directly proportional to change in velocity। और अभी मैंने आपको ये बताया कि change in velocity is also known as the shear rate। तो अगर कहीं पर मैं आपको change in velocity लिखूं, कहीं पर shear rate लिखूं, it is the same thing। तो वही बात मैथमेटिकली आई कि shear stress is directly proportional to shear rate
In other words, shear stress is directly proportional to the change in velocity. Mathematically आप कैसे लिखते हैं? ये टॉर कहां से आया? मैंने आपको पहले बताया था shear stress का जो सिंबल होता है वो टाउ होता है, तो टाउ यहां से आ गया। यहां पर एक्चुअली एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होती जो एक उल्टा क्रॉस होता है। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, इट शुड बी टाउ द अदर क्रॉस इज dv अपॉन dy, मगर उस क्रॉस को हटाने के लिए और इक्वल टू साइन लाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं k। वैसे तो k होता है मैथमेटिक्स में, मगर इस केस के अंदर इट इज सिग्निफाइड एज म्यू विच इज ऑल्सो नोन एज विस्कोसिटी। सो इन अदर वर्ड्स एंड स्पेसिफिकली नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी। जब आप ये म्यू देखते हैं, म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी। सो shear stress आपका क्या हो गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear rate, जिसके अंदर जो आपका कांस्टेंट है दैट इज नोन एज द डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। आमतौर पे जब तक मैं विस्कोसिटी बोलूं, आप अज्यूम कीजिएगा कि मैं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलूं, तब आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ आइएगा। सो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज आल्सो टर्म्ड एज म्यू is called as the dynamic viscosity of the fluid, and another name for it is absolute viscosity. Absolute viscosity, viscosity, dynamic viscosity, they mean the same things in question. Kinematic viscosity is different. यहां तक कोई मसला है कि मैंने ये रिलेशन कैसे निकाली कि shear stress is related with the shear rate by multiplying with the constant of proportionality mu. तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया one of the fundamental properties in fluid mechanics is viscosity, which is related by the equation torr is equal to mu dv upon dy. Prove it. तो आपको प्रूफ करने के लिए ये सारी कहानी लिखनी पड़ेगी, बेशक अपने वर्ड के अंदर। आई डोंट वांट वर्ड टू वर्ड, स्ट्रेट टू द पॉइंट, और ये डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। दैट इज वन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज, मैं आपको डायग्रामेटिकली दे दूं, मैं आपको ये डायग्राम दे दूं और मैं आपको ये बोलूं कि द डायग्राम शोज द गिवन रिलेशन, प्रूव इट। मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया, मैंने आपको ये रिलेशन दे दी, और तब मैं आपको प्रूफ करने को बोल रहा हूं, तो आप फिर यही चीज लिखेंगे और फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम इस डायग्राम को एक्सपैंड कर रही है और आपके आंसर को सब्सटेंस दे रही है, क्योंकि सारा आप इसके अंदर दिखा रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखेंगे v प्लस डी वी माइनस वी, ये dv बनता है, dv अपॉन dy इज इक्वल टू शेयर रेट। बात समझ आई? Yes, sir. चले, अब आते हैं यूनिट्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी को। वैसे तो अगर आपने विस्कोसिटी पहले पढ़ी होती, मैं आपको ये भी बता दूं कि विस्कोसिटी के जो मेन यूनिट्स होते हैं एसआई के अंदर, दैट इज पास्कल सेकंड, इन अदर वर्ड्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, मगर ये एसआई यूनिट हैं। चलें, किस तरह ये आए अब ये देखें। डेरिवेशन तो मैंने आपको दिखाई है, डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अभी अभी हमने ये रिलेशन निकाली है, टॉर इज इक्वल टू म्यू dv अपॉन dy। सही है? हमें निकालने हैं यूनिट्स डायनेमिक विस्कोसिटी के। तो अगर हमें डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट्स निकालने हैं, क्यों ना हम इसको एक साइड पे ले जाएं। अगर हम इसको एक साइड पे ले गए यहां पर, तो ये बन जाएगा टॉर डिवाइडेड बाय dv अपॉन dy। यहां तक कोई मसला? कोई मसला नहीं होना No, चाहिए। sir, clear है। क्लियर है? नो तो सर। इसको मैं यूं भी इंटरचेंज कर सकता हूं, टॉर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वी, क्योंकि ये टॉर डिवाइड हो रहा है। मैथमेटिकली मैं इसको ये ले आया। अब हमें ये भी मालूम है, पहले मैं बता चुका था कि टॉर जो है वो शेयर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किस चीज को सिग्निफाई करता है? प्रेशर को। प्रेशर को सिग्निफाई करता है, मीनिंग फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया टॉर के यूनिट्स हैं पास्कल। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इधर अब सिर्फ यूनिट्स डालना शुरू कर दूंगा।
फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ए का यूनिट क्या होता है, मीटर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही चीज मैंने यहां पर कर दी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास डी वाई ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने म्यू को सब्जेक्ट बना रहा हूं। जब मैं डी वाई ऊपर आ गया है तो वाई के यूनिट डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर, और नीचे वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर कैंसिल हो गया, मेरे पास आखिर में क्या बच गया, न्यूटन ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं यही मीटर स्क्वायर को अपनी आसानी के लिए सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, सेकंड को ऊपर ले जाऊं, ताकि एक इक्वेशन एक अच्छे रिलेशन के अंदर दिखे, तो मेरी ये टर्म्स बन जाएंगी न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका पास्कल होता है। तो वन फॉर्म ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड, दैट इज वन यूनिट ऑफ what you call dynamic viscosity, pascal second. Another form of this is this only, as in the other form is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। यानी अगर आपको आंसर लिखना है और ऐसा यूनिट में लिखना है तो कोई स्टूडेंट इसको पास्कल सेकंड लिख सकता है, कोई स्टूडेंट इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड लिख सकता है, बोथ मीन द सेम थिंग। ये वाला फॉर्म समझ आया, पास्कल सेकंड किस तरह आया? यस सर। यस सर। जी, कोई कुछ पूछ रहा था? चलें, मैं अज्यूम करता हूं कि नहीं पूछ रहे हैं तो क्लियर हो गया। सेकंड फॉर्म पे आ जाएं। आपको ये भी मालूम है कि अगर आप न्यूटन की डायमेंशंस निकालें तो न्यूटन बाय डायमेंशन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की डायमेंशंस निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? बेस यूनिट से आप निकालें, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, वही जो मेरे यूनिट्स है ना, क्या नाम है, विस्कोसिटी के, मैंने पहले निकाले थे ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यहां पर निकाला है ना मैंने, पास्कल सेकंड की जगह मैंने लिख दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। अब इस न्यूटन की जगह मैं उसको इस टर्म्स ऑफ इट्स बेस यूनिट्स डाल दूंगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मैंने ये डाल दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर नीचे ही था, मल्टीप्लाई बाय सेकंड, क्योंकि वो पास्कल सेकंड था। तो ये जो सेकंड है, ये सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड, ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ रह गया केजी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ये सॉल्व करने के लिए, कभी कभी साइन और डिवाइड के अंदर मसला हो जाता है। मैं आपको इजियर वे बता दूं, जो मैं क्या करता हूं, मैं इसी इक्वेशन को लिख लेता हूं केजी मीटर, ये सेकंड है ना, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, सेकंड इनवर्स कर लेता हूं, ताकि फिर मेरे पास डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर आ जाए, और फिर मैं उसकी साइन रिवर्स कर लेता हूं। कहने का मकसद यह है कि मैंने देखें क्या किया, केजी मीटर सेकंड -1 को ऊपर ले गया और नीचे मीटर स्क्वायर रह गया। तो अब ये देखने के अंदर मेरे लिए ज्यादा वो है कि इजीली मुझसे सॉल्व हो जाएगा। यहां पर मुझसे भी गलती हो जाती है कि अगर ये सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर है तो डिवीजन उसके अंदर मसला हो जाए। दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्रिक, अगर आप इसके अंदर बहुत अच्छे हैं बिस्मिल्लाह करें, पर मैं इसको प्रेफर करता हूं कि मैं केजी पर मीटर सेकंड -1 को ऊपर ले जाऊं, इससे मेरा मीटर मीटर कैंसिल हुआ। अब यहां पर s-1 है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस s-1 को दोबारा नीचे ले गया, केजी मीटर सेकंड। तो ये मेरा सेकंड फॉर्म ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी है। यानी डायनेमिक विस्कोसिटी का एक टर्म है पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर सेकंड, दूसरा फॉर्म है केजी पर मीटर सेकंड। ये फॉर्म कब यूज होता है? ये फॉर्म जब यूज होता है जब आपको मास गिवन होता है। कहने का मकसद ये कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है तब भी आप विस्कोसिटी ढूंढ सकते हैं, अगर मास गिवन नहीं है तो आप नॉर्मल फोर्स से ले लें, मगर अगर मास गिवन है तब आप क्या करेंगे? तो दिस विस्कोसिटी रिलेशन या डायनेमिक विस्कोसिटी रिलेशन इज फॉर इन टर्म्स ऑफ मास। क्लियर हो गया कि ये कैसे आया?
यस सर। यस चलें। सर। अब ये मैंने आपको एक टेबल्स दी हुई हैं फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी की। देखें, आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई सिस्टम, उसके अंदर इट इज न्यूटन सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो आपको एक बताया, दूसरा पास्कल सेकंड, तीसरा आपका केजी डिवाइड बाय मीटर सेकंड। ये वही चीजें हैं जो हमने अभी की हैं। ये एक तरीका है। एसआई सिस्टम के अंदर पाउंड मल्टीप्लाई बाय एस। आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू नॉट कीप दिस एज पाउंड मल्टीप्लाई बाय एस, कीप इट एज पाउंड फोर्स। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए न्यूटन को हम पाउंड फोर्स बोलते हैं, तो पाउंड एफ, एस वैसे का वैसे रहेगा, मीटर का कॉरेस्पॉन्डिंग फिट स्क्वायर हो जाएगा। मास की जगह इन्होंने स्लग पर फिट पर सेकंड दिया है। स्लग की जगह आप पाउंड मास भी लिख सकते थे, यानी यहां पर आप लिखते LBF, यहां पर आप लिखते LB या LBM। तो ये दूसरा सिस्टम होता है। अच्छा, पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में आपने कहीं देखा भी होगा कि हम विस्कोसिटी के लिए पॉइज या सेंटीपॉइज यूज करते हैं। और अभी जब आप आगे अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद दूसरे कोर्सेज पढ़ेंगे जहां पर डार्सी लॉ यूज होता है या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में परमिबिलिटी वगैरह यूज होती है और विस्कोसिटी यूज करेंगे, तो वहां पर आप बहुत जगह पॉइज या सेंटीपॉइज देखेंगे। बस आप ये देख लें कि जो पॉइज होता है ना, वो आप उसको इस यूनिट के अंदर ला सकते हैं, यानी पास्कल सेकंड में ला सकते हैं। 1 पॉइस, ये जो आपका लिखा हुआ है 0.001 पास्कल सेकंड, ये 1 मिली पास्कल पर सेकंड भी हो सकता है, यानी 1 MPas। आजकल ये यूनिट यूज हो रहा है 1 MPas, पॉइस यूज नहीं हो रहा है। आप अगर आंसर अपना पॉइस में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मैं गलत मार्क नहीं करूंगा। मगर आजकल के जो यूनिट्स यूज हो रहे हैं वो CGS सिस्टम के अंदर मिली पास्कल पर सेकंड यूज हो रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक खोलिएगा, ये वाले टेबल पे जाइएगा, इसके नीचे उसके अंदर आपको लिखा हुआ भी होगा कि मिली पास्कल पर सेकंड किस तरह कन्वर्ट हो रहा है। बट आई डोंट रियली केयर कि आप कौन से यूनिट में जाएं, मगर ये मैं आपको कहने की बात बता रहा हूं कि मिली पास्कल पर सेकंड इज द यूनिट यूज दीज डेज। अब बात आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अगर मैं सिर्फ विस्कोसिटी लिखूं तो आप डायनेमिक विस्कोसिटी पे जाएं, बट व्हेन आई स्पेसिफिकली से काइनेमेटिक विस्कोसिटी, then you have to go on kinematic viscosity. Or basically what is kinematic viscosity? Kinematic viscosity is nothing but the ratio between the density and the dynamic viscosity of the fluid. सही है? It is the ratio between the dynamic viscosity and the density of the fluid. In other words, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप ये टेढ़े V से सिग्निफाई करते हैं। जब भी आप काइनेटिक विस्कोसिटी लिखें तो एक टेढ़ा V लिखिएगा, बिकॉज एक नॉर्मल V शोज वेलोसिटी, और क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में वेलोसिटी भी यूज करते हैं तो वेलोसिटी के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है फिर तो इट इज गिवन बाय दिस सिंबल V। मैथमेटिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या लिखी जाती है? जो मैंने आपको अभी बोला, रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी आपका म्यू divided by rho. Since both the dynamic viscosity and the density are property of a fluid, जो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है वो एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। आपको मैं शुरू में जब कैरेक्टराइज ऑफ फ्लूइड बता रहा था उस वक्त मैं आपको बता रहा था विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आपको ये भी मालूम है डेंसिटी भी उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जब तो आप फ्लूइड को कैरेक्टराइज कर सकते हो कि ये फ्लूइड क्या है, ये फ्लूइड क्या है, ये फ्लूइड क्या है तो उसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी है, वो भी एक प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड होगी, बिकॉज इट इज रिलेटेड ऑन दी अदर टू प्रॉपर्टीज विच आर बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। अब भाई बात वही आती है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट्स को डिराइव करो, कोई मसला नहीं है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट्स को आपको मालूम है कि रो के यूनिट क्या होते हैं? रो के यूनिट kg पर मीटर क्यूब होता है। वेलोसिटी के यूनिट क्या, वो विस्कोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? मैंने आपको बोला था पास्कल पर सेकंड है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, पर यहां पर मैंने केजी पर मीटर सेकंड लिखा। इसको केजी पर मीटर सेकंड लिखने की वजह यह है कि नीचे भी केजी आ रहा है, तो
तो मैंने अपनी आसानी के लिए kg को लिखा ताकि मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट्स ढूंढ सकता हूं। मैं पास्कल सेकंड में अगर लिखता तो फिर मुझे पास्कल को फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता, फोर्स से फिर मास में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि मुझे mm को डिवाइड करना था। तो क्यों ना मैं पहले ही kg के टर्म्स में लिख लूं, kg मीटर पर सेकेंड, kg डिवाइड बाय मीटर सेकेंड। अब मैं वही ट्रिक आपको बता रहा हूं। यूं मुझे देखने में कंफ्यूजन लगता है कि ये भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर। आई वुड रेकमेंड यू टू जो ये यूनिट्स हैं इनको नेगेटिव में ले जाएं, आप ही के लिए आसानी होगी। यही चीज मैंने ये की, मैंने ये किया कि kg -1 s -1 कर दिया, नीचे kg पर मीटर क्यूब रहने दिया, तो ये kg डिवाइड हो गया। अब मैं आसानी से कर सकता हूं कि मुझे मालूम है -1 यहां पर है और 3 यहां पर आ रहा है, तो अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और s का कहीं रिलेशन हो नहीं रहा है, तो ये जो s -1 है इसको मैं दोबारा नीचे ले आया ताकि s पॉजिटिव में आ जाए। अगर कोई स्टूडेंट इसके यूनिट्स को लिखता काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, वो भी सही होता, इट इज नॉट रॉन्ग। तो आपकी आसानी है, आपको मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 लिखना है या मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड लिखना है, दोनों सेम चीज हैं। बात समझ आई? यस सर। सही है। अच्छा, इसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए भी उसके यूनिट्स हैं। एसआई में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट सिस्टम में फीट स्क्वायर पर सेकेंड, सीजीएस सिस्टम के अंदर आप इसको स्टोक में कैलकुलेट करते हैं या सेंटी स्टोक में कैलकुलेट करते हैं, मगर अगेन दीज यूनिट्स आर नो लॉन्गर यूज्ड। वन स्टोक इज 1 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आसानी करने के लिए आपने मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। इसका भी जो रिलेशन है वो इस टेबल के नीचे लिखा होगा, टेबल 2.2 के नीचे। प्लीज रिलेशन देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, बट इट इज नथिंग बट कन्वर्टिंग मीटर फ्रॉम मिलीमीटर स्क्वायर। मेन यूनिट्स आप ये रख लीजिएगा, आइदर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और फुट स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है तो इजीएस्ट वे इज जस्ट कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू मीटर, और ये मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन में सिखा दिया है किस तरह कन्वर्ट करना है, तो आप आराम से मीटर के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, यहां तक हमारा विस्कोसिटी का चक्कर खत्म हो गया है। अब बात आती है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब ये क्या चीज है भाई? स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज रियोलॉजी। हम ये जो स्टडी करते हैं ना कि डिफॉर्मेशन, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या इम्पैक्ट है, इसको ब्रॉड कैटेगरी में रियोलॉजी कहा जाता है। रियोलॉजी के जो फील्ड है ना उसमें उसके अंदर विस्कोसिटी डिराइव किया जाता है। विस्कोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रियोलॉजी। बात क्या हो रही है? there is a major difference between a Newtonian fluid and a non-Newtonian fluid. इससे पहले हम न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स पे आए तो आपको ये बता दें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ shear stress क्या होता है? टाउ। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, रेशियो ऑफ shear stress टाउ टू द shear rate is constant for a given temperature and pressure and is given by the viscosity coefficient. इसका मतलब ये हुआ कि at a certain temperature and pressure, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा और आपका जो shear stress है वो shear rate के निस्बतन, यानी आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट के निस्बतन अगर स्ट्रेट लाइन है या फॉलो कर रहा है तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। यानी कहने की बात ये कि यू विल से that this is a Newtonian fluid. If I give you this diagram and I ask you
if this fluid is a Newtonian fluid या non-Newtonian fluid, this fluid is a Newtonian fluid because it is following Newton's law of proportionality. ये लाइन देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. अगर मैं विस्कोसिटी इस पॉइंट पे लूं, विस्कोसिटी इस पॉइंट पे लूं, विस्कोसिटी इस पॉइंट पे लूं, the viscosity is the same. So any region जिसके ऊपर viscosity is the same, provided that the condition temperature is same, तो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो होगा. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं टेम्परेचर हैज टू बी सेम? टेम्परेचर हैज टू बी सेम because if you change the temperature, you are playing along with the viscosity. टेम्परेचर चेंज करता है तो आपकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी. हम इसकी बात करेंगे, मगर फॉर नाउ you should know that at a constant temperature, for any fluid which does not change its viscosity, that such a fluid is known as a Newtonian fluid. I repeat, at a constant temperature, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कोई भी फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी सेम जारी है with relation to the shear stress compared to the shear rate, that fluid is known as a Newtonian fluid, or in other words, it follows Newton's law of viscosity. अच्छा जी, ये देखें, न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं. विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर रेट. यानी आपकी शेयर रेट जितनी भी हो जाए, बाय शेयर रेट आई मीन वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी 10 हो जाए, आपकी वेलोसिटी 15 हो जाए, आपकी वेलोसिटी 20 हो जाए, आपकी विस्कोसिटी का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वही रहेगा. सपोज एक चीज के लिए, एक चीज की विस्कोसिटी है 1 पास्कल पर सेकेंड. आप वेलोसिटी 15 कर लें, वेलोसिटी 20 कर लें, वेलोसिटी 25 कर लें, अगर विस्कोसिटी 1 पास्कल पर सेकेंड है, so that fluid is a Newtonian fluid. I'll give you an example. Back to this diagram. Suppose viscosity at this point is 1 Pascal per second. Viscosity is 1 Pascal per second. 1 Pascal per second. Obviously, as you move up, your velocity is increasing. Velocity 5 meter per second. Viscosity is 1 Pascal per second. Velocity 10 meter per second. But viscosity is 1 Pascal second. Velocity 15 meter per second. Velocity 20 meter per second. But the viscosity falls on the straight line, linear line. If the viscosity is the same, then you can say this is a Newtonian fluid. So that is the first and foremost important thing. Viscosity remains constant independent of shear rate. It does not matter how much shear is applied. ये भी फर्क नहीं पड़ता आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो. आप 20 न्यूटन, आप 20 पास शेयर अप्लाई कर रहे हो कि 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कितना शेयर कर रहे हो या कितना शेयर स्ट्रेस दे रहे हो पास्कल्स के अंदर, फर्क नहीं पड़ेगा. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन. ये मैटर जब तक नहीं करेगा हाउ मच शेयर इज अप्लाइड, टिल योर थिंग इज अंडर, your fluid is under constant temperature. The moment your temperature changes, this rule cannot be applicable क्योंकि आपने अपनी conditions change कर ली हैं. It follows a linear relationship between viscosity and shear stress following Newton's law of viscosity. Examples are water, mineral, oil. So this is just the example of a न्यूटोनियन फ्लूइड के इट्स फॉलोइंग अ लिनियर रिलेशनशिप. ये भी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया था. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं दे डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो उनकी विस्कोसिटी होती है ना, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर रेट, शेयर स्ट्रेस टू शेयर रेट. ये देखें, जब मैंने विस्कोसिटी को सब्जेक्ट बनाया, यहां पर मैं विस्कोसिटी को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये क्या बन गया? रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस, दिस इज शेयर स्ट्रेस, दिस इज शेयर रेट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, शेयर रेट. वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं. फॉर अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, देयर विस्कोसिटी
यानी विस्कोसिटी आप कैसे ढूंढते हो? विस्कोसिटी अगर डिफाइन करना है, दैट इज द रेशियो ऑफ द shear स्ट्रेस टू द shear रेट. रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू shear रेट इज नॉट अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं कर रही है, और shear रेट के ऊपर डिपेंड इज नॉट अ कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द shear रेट. यानी ये shear रेट के ऊपर डिपेंड करती है. अगर आपकी shear रेट बढ़ेगी तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, अगर आपकी shear रेट कम हो रही है तो आपकी विस्कोसिटी कम हो रही है. यानी ये shear रेट इसके अंदर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये विस्कोसिटी को चेंज कर रही है. ऐसा जो फ्लूइड हो उस फ्लूइड को हम कहेंगे कि ये आपका है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. कोई प्रॉब्लम है यहां तक differentiating between a Newtonian fluid and a non-Newtonian fluid? या कोई चीज समझ नहीं आई? सर ये शेयर रेट सर. शेयर रेट में क्या चीज समझ नहीं आई आपको? मतलब शेयर रेट के बारे सर में क्या इसकी पूछना इक्वेशन चाह रहे हैं जी? सर इसकी इक्वेशन. शेयर रेट क्या होती है? शेयर रेट की इक्वेशन नहीं होती. मैंने आपको पीछे ये बताया था कि शेयर रेट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ग्रेडियंट. शेयर रेट का दूसरा नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? dv अपॉन dy. यानी dv अपॉन dy का मतलब शेयर रेट है. यस सर. सही है. तो इसका इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ इसका ये शेयर रेट है. यानी या शेयर रेट बोले या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले, एक ही बात है. और कोई सवाल? नो तो सर, क्लियर है. अब जो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ना, उसका जो बिहेवियर होता है वो 5 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है. वो डिपेंड होता है कि वेदर आपका जो फ्लूइड है वो डायलेटेंट है, सूडोप्लास्टिक है, बिंगम फ्लूइड है, रियोपेक्टिक है, या थिक्सोट्रोपिक है. ये नाम याद करना मुश्किल है, मगर इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है. ये मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह ये आइडेंटिफाई होते हैं. Non-Newtonian fluids are divided into 2 major categories. देखें, पहले तो फ्लूइड डिवाइड होते हैं. फ्लूइड आर डिवाइडेड इनटू 2, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. अब जो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ना, वो मजीद 2 में डिवाइड होता है. किस पे डिवाइड होता है? टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड एंड टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड. इसका मतलब वो फ्लूइड जो टाइम पे डिपेंड करते हैं और वो फ्लूइड जो टाइम पे डिपेंड नहीं करते. टाइम पे जो डिपेंड नहीं करते, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स have viscosity at any given shear stress which does not depend upon the time. यानी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी. और जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है उसकी जो विस्कोसिटी है दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम. यानी वो फ्लूइड्स, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो टाइम डिपेंडेंट हैं, दैट विल डिपेंड ऑन टाइम, के टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी चेंज होगी. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम. अब पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लूइड की. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड? टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड मींस दोस फ्लूइड्स which do not depend upon time, यानी their viscosity does not depend upon time. सबसे पहले इसके अंदर होता है सूडोप्लास्टिक. मैं आपको एक प्लॉट शेयर करूंगा, उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा. द प्लॉट ऑफ shear stress against velocity. आपने जो ग्राफ बनाया है shear stress और velocity का, वो लाई करता है न्यूटोनियन फ्लूइड के ऊपर. इट विल ऑलवेज लाई अबव अ न्यूटोनियन फ्लूइड. कहने का मकसद ये है, चले मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं. सपोज मैंने आपको एग्जाम के अंदर ये ग्राफ दे दिया, सही है? ये मेरा ग्राफ है एंड दिस ग्राफ इज अगेंस्ट द शेयरिंग स्ट्रेस टॉर्क अगेंस्ट द वेलोसिटी ग्रेडियंट. सही है? शेयरिंग स्ट्रेस अगेंस्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट. या दूसरा ग्राफ है डायनेमिक विस्कोसिटी अगेंस्ट द वेलोसिटी ग्रेडियंट. मेरा पहला क्वेश्चन आपको यह है, मैंने इस ग्राफ को लेबल कर दिया है ए बी सी डी. आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर है द फॉलोइंग ग्राफ शोज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स.
आइडेंटिफाई ए बी सी डी। आपको ये बताना है कि ये ए बी सी डी कौन से टाइप ऑफ फ्लूइड है। सबसे आसान तरीका तो यह है कि आपको मालूम है आपका जो ए है ना वो है न्यूटोनियन फ्लूइड। मैं कैसे बोल सकता हूं ए न्यूटोनियन फ्लूइड है? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये ए वाटर है या ऑयल है या कौन सा न्यूटोनियन फ्लूइड है, मैं ब्रॉड कैटेगरी पूछ रहा हूं। मुझे इस तरह मालूम है कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड है क्योंकि ये देखें ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है एंड इट इज गोइंग थ्रू द ओरिजिन। अ स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू द ओरिजिन मींस कि इसका मैथमेटिकली ग्रेडियंट सेम होगा। ग्रेडियंट सेम का मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी सेम होगी। इस पॉइंट के ऊपर विस्कोसिटी सेम है, इस पॉइंट पे विस्कोसिटी सेम है, इस पॉइंट पे विस्कोसिटी सेम है। यहां तक कि अगर ये ग्राफ नेगेटिव में भी होता तो विस्कोसिटी सेम होती, बिकॉज विस्कोसिटी इज द सेम। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दिस इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। सही है। अब बाकी तीन आपको मालूम करने हैं। यहां पर तो ये आपको तीन दिए हुए हैं, इनका स्केल दिया हुआ है, पर आप इस स्केल को नहीं देखें। मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं कि आपको कैसे मालूम है। आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा न्यूटोनियन, सूडोप्लास्टिक, बिंगम एंड डायलेटेंट। आपको लिखा आएगा ए बी सी डी। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया न्यूटोनियन फ्लूइड को, स्ट्रेट लाइन है। आपको ये मालूम है कि बाकी जो तीन हैं वो क्या हैं, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। मगर आपको ये नहीं मालूम है कि इन नॉन न्यूटोनियन में से सूडोप्लास्टिक कौन सा है, बिंगम कौन सा है, डायलेटेंट कौन सा है। ये तीन चीजें आपको नहीं मालूम है। ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज मालूम बताएंगी। तो पहले प्रॉपर्टीज करते हैं, देन आई विल कम बैक टू दिस ग्राफ। प्रॉपर्टी वाइज मगर आपको ये मालूम है कि ये तीनों जो है ना ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। अच्छा देखें, एक चीज, एक टेक्निक में और आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स है ना इनको कहीं लिख लें या इनको याद कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द सेम थिंग्स दैट आई विल आस्क यू। हाउ कैन यू टेल दिस इज अ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड? मैं अगर आपको ये ग्राफ दे दूं और मैं आपको ये ग्राफ दे दूं, ये दोनों ग्राफ दे दिए, मैंने आपसे ये बोला ग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ग्राफ ऑन द राइट हैंड साइड, विच ऑफ दीज इज अ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड? मेरे क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, एक पार्ट से दूसरा पार्ट। विच ऑफ दीज इज अ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड एंड विच इज अ टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड? सबसे आसान तरीका मालूम करने के लिए कि अगर मैंने आपको ग्राफ दिया होगा उसका स्केल देख लीजिएगा। दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस विथ वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज डायनेमिक विस्कोसिटी अगेंस्ट टाइम, ये भी डायनेमिक विस्कोसिटी अगेंस्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी जिसकी एक्सिस के अंदर टाइम एलिमेंट होगा दैट इज ऑटोमेटिकली टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। सबसे आसान तरीका। सो इफ आई गिव यू दिस ग्राफ and if I give you this graph, first part, which of the graph is time dependent, time independent? आंसर हो गया, जिसके नीचे टाइम है that is time dependent। दूसरा ग्राफ ये आता है कि based on the graph on the left hand side, question identify A B C D। इसके अंदर से मैंने आपको A तो बता दिया, A आपका है न्यूटोनियन फ्लूइड, that I've told you। प्रॉब्लम आती है कि बी सी डी को लेबल करें। अब ये नेम्स मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि नेम्स क्या हैं, मगर आपने अच्छे बच्चों की तरह नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के नाम पढ़े तो आपको मालूम है बाकी तीन में से एक बिंगम होगा, एक सूडोप्लास्टिक हो गया, एक डायलेटेंट हो गया। अब किस तरह इनको लेबल करना है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें। सूडोप्लास्टिक की पहले प्रॉपर्टीज, देन बैक टू द ग्राफ। सूडोप्लास्टिक, द प्लॉट ऑफ shear stress against velocity lies above the Newtonian fluid। दूसरा point, initially the curve begins steeply showing a high viscosity, later the slope decreases with an increase in velocity gradient। ये दूसरा नाम इसका shear thinning है। Examples include blood plasma, syrup, polythene and inks। ये टाइम इंडिपेंडेंट के लिए था। दूसरे पे आ जाएं, डायलेटेंट, ये इसका उल्टा है। द प्लॉट ऑफ shear stress versus velocity gradient lies below the Newtonian fluid।
ऑल्सो नोन एज shear थिकनिंग। अगर सूडोप्लास्टिक shear थिनिंग है तो ये shear थिकनिंग हुआ। It begins with a low slope showing that initially viscosity is low, then the slope increases with increasing velocity. Example includes slurries and mixtures of starch in water. तीसरा जो हो गया वो बिंगम फ्लूइड हो गया, sometimes called plug flow fluid. Plug flow क्या होता है? एक constant velocity के ऊपर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होता है perpendicular to the flow motion axis, उसको हम plug flow बोलते हैं. But you do not need to know what plug flow is. मैंने इसलिए बता दिया in case someone asks me this question. Bingham fluid क्या होता है? Bingham fluid requires the development of significant amount of shear stress. यानी Bingham fluid को flow करने से पहले आपको एक shear stress लगाना पड़ेगा. जब तक आप shear stress नहीं लगाओ आपका Bingham fluid flow नहीं कर सकता. एक दफा आपने sufficient shear stress लगा दिया, आपका जो फ्लूइड है वो इट विल स्टार्ट टू फ्लो और ये एक लिनियर स्लोप बनाएगा टू द कर्व शोइंग दैट इट हैज अ कांस्टेंट अपेरेंट विस्कोसिटी. यानी बिंगम फ्लूइड को एक दफा जब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका जो विस्कोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. एग्जांपल्स आर चॉकलेट, मस्टर्ड, टूथपेस्ट, स्लज, सीवेज. अब भाई आते हैं ग्राफ की तरफ. ये आपका ग्राफ था, ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था न्यूटोनियन फ्लूइड से, सही है. पहले हम बात करें शेयरिंग स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की. ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था न्यूटोनियन फ्लूइड से. आपका पहली बात तो ये, अगर आपको इस ग्राफ को देखकर लेबल करना था बाकी तीन, सबसे आसान तो लेबल करना डायलेटेंट है या शेयर थिकनिंग है. उसकी डेफिनेशन क्या थी? इट इज बिलो द न्यूटोनियन फ्लूइड. बिलो द न्यूटोनियन फ्लूइड देयर इज ओनली वन विच इज बिलो द न्यूटोनियन फ्लूइड. तो आपको मालूम है कि जो डी इज डायलेटेंट. क्यों? ये न्यूटोनियन फ्लूइड के नीचे है. इसी तरह सूडोप्लास्टिक जिसको शेयर थिनिंग बोलना था, दैट इज अबव द न्यूटोनियन फ्लूइड. तो ये एक तरीका है आपको मालूम करने का. और बिंगम फ्लूइड के लिए क्या बोला था? अ shear is applied, उसके बाद वो फ्लो करता है और लिनियर होता है. इस ग्राफ को अगर आप फॉलो करें तो ये देखें ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपने कोई शेयरिंग स्ट्रेस दिया है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये कोई वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये लिनियर हो रहा है. तो आपको मालूम हो गया कि आपका ये जो पॉइंट है ये आपका सूडोप्लास्ट ये सॉरी बिंगम है. तो अगर मैंने आपको ये ग्राफ दिया ए बी सी डी कर तो आपको मालूम हो जाएगा कि ए इज द न्यूटोनियन, बी इज द डायलेटेंट, सी इज द सूडोप्लास्टिक, डी इज द बिंगम. ये तरीका था याद रखने के लिए कि कौन सा ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है और कौन से की क्या प्रॉपर्टी है. दूसरा तरीका ये है कि यहां पर देखें सूडोप्लास्टिक में बोल रहा है इनिशियली द कर्व बिकम्स स्टीपली शोइंग हाई विस्कोसिटी, लेटर द स्लोप डिक्रीजेस. यानी इनिशियली उसका ग्रेडियंट है वो बढ़ रहा है, बाद में कम हो रहा है. अगर आप इसको फॉलो करें इसी ग्राफ को तो ये विस्कोसिटी को देखें, ये जो स्लोप है ये स्टीप है और यहां पर ये कम हो रहा है, घट रहा है क्योंकि ये फ्लैट हो जाएगा. इसी तरह डायलेटेंट का इसका उल्टा था. डायलेटेंट का था कि इनिशियली इट इज अ लो विस्कोसिटी, बाद में इट बिकम्स स्टीपर. और यही बात हो रही है, इनिशियली दिस विस्कोसिटी इज फ्लैटर, लोअर it becomes steeper. So that is one way how to analyze it, but that is shearing stress against viscosity. Now let us compare it with apparent dynamic viscosity against velocity gradient. Again I have not given you this, I have given you A, B, C, D and I ask you that tell me based on A, B, C, D that which is A, which is B, which is C, which is D. I will tell you how I would do it. I would label A and D first. A and D मैं इसलिए label कर सकता हूं because both are straight line, both have the same viscosity. यानी इसके अंदर भी viscosity constant है, इसके अंदर भी viscosity constant है. मुझे मालूम है कि दोनों में से एक न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, एक बिंगम होगा. सबसे आसान तरीका क्या है
कि न्यूटोनियन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो मुझे वैसे ही मालूम है ज्यादा होगी बिंगम के निस्बतन। आप इसके ग्रेडियंट्स को ही देख लें, इसका ग्रेडियंट स्टीप है, इसका ग्रेडियंट कंपैरेटिवली स्मॉल है। डायग्रामेटिकली ये आपको दिखा रहा है ये फिगर। तो स्टीपर ग्रेडियंट मींस हायर विस्कोसिटी वैल्यू, यानी दोनों स्ट्रेट लाइनों में से जो ऊपर वाली होगी वो न्यूटोनियन फ्लूइड की होगी, जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन होगी वो बिंगम फ्लूइड के लिए होगी। सिर्फ दो टाइप ऑफ फ्लूइड हैं जिसके अंदर विस्कोसिटी सेम हो रही है, विच इज ऑल्सो शोन इन दिस डायग्राम। न्यूटोनियन फ्लूइड और बिंगम के अंदर विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन स्ट्रेस। यहां तक बात क्लियर है? अब बात आती है डायलेटेंट की और सूडोप्लास्टिक की। अब आप विस्कोसिटी डेफिनेशन में जाएं। विस्कोसिटी डेफिनेशन के अंदर क्या था डेफिनेशन उसका? सूडोप्लास्टिक के अंदर क्या था? ये देखें ना, इनिशियली द कर्व बिकम्स स्टीपली शोइंग अ हाई विस्कोसिटी, लेटर द स्लोप डिक्रीजेस विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब आप क्या जाएंगे कि आपका ये जो सूडोप्लास्टिक है, सूडोप्लास्टिक क्या होता है? वो शेयर थिनिंग होता है, शेयर थिनिंग होता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है। डायलेटेंट क्या है? वो शेयर थिकनिंग हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है विद टाइम, नॉट विद टाइम, विद वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो भाई इन दोनों में से कम कौन सा हो रहा है, ज्यादा कौन सा हो रहा है? ये वाला कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम। जी ये कम हो रहा है, नीचे वाला ये कम हो ज्यादा। रहा है, नीचे वाला ज्यादा हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप यस इस वाले को डायलेटेंट लेबल कर दोगे और इस वाले को सूडोप्लास्टिक लेबल कर दोगे। समझ आई? तो जी सर। लेबलिंग समझ आई कि अगर मैंने आपको इस तरह से मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर मैंने आपको बोल दिया कि लेबल करो, तो आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि इसकी विस्कोसिटी को क्या हो रहा होता है, इसके उसको क्या हो रहा होता है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इट। तो आपको ये भी मालूम करने की जरूरत नहीं है न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है, बिंगम कौन सा है, सूडोप्लास्टिक कौन सा है, डायलेटेंट कौन सा है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो ग्राफिकली a question can come like this and you have to label A, B, C, D. Up, that was my second part. My third part would be that based on your labeling, explain the properties of C. अब आपने लेबलिंग देखकर बोला था कि C मेरा सूडोप्लास्टिक था, अब आप सूडोप्लास्टिक के प्रॉपर्टीज बताओगे कि सूडोप्लास्टिक में क्या होता है। सही है? This is where I'd like to stop. Then I will continue from time dependent fluids next time. नहीं मेरी रिकॉर्डिंग में छू छू हो रहा है। जाओ। Any questions till here? हैंग क्यों हो रहा है?